Assalamu alaikum. Today our topic is descriptive analysis and a part of it analyzing distribution. We are covering a lecture 4 in it. Now, topics to be covered are percentile, quartiles, variance and standard deviation. Now, analyzing distribution. Distribution are very useful for interpreting and analyzing data. मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन का में ये एडवांटेज होता है कि कोई भी चीज़ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं in terms of many things. A distribution describes the overall variability of the observed values of a variables. उससे कितने आपके रीजन निकल सकते हैं, कितने वैल्यूज़ उस आपके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, आपको स्टेट अपनी कोई करंट स्टेट मालूम हो सकता है. In this section we introduce additional ways of analyzing distribution. For example, we will study percentile, quartiles, z-score, imperial rule and box plot. Now, percentile. A percentile is the value of a variable at which a specified approximate percentage of observation are below that value. Means, for example, if we have a sample of 100, or if I told you tell me the percentile of if we have a sample of 100 students, or if I told you what is the 80th percentile, तो मीन्स उसके बिलो उसके नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब उसकी परसेंटाइल में आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, द पीएथ परसेंटाइल टेल अस द पॉइंट इन विच डेटा where approximately pth percentage of observation have value less than the p percentile. Hence, approximately 100 minus p% of the observation have values greater than the pth percentile. For example, in next slide, the value below which a percentage of data falls, the fourth tallest person of a group. Over here we have a sample of 20. तो 20 के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो अगर 20 की परसेंटेज में दिखाऊँ आउट ऑफ 100, तो 80% ऑफ पीपल आर शॉर्टर देन, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है कौन सी है, फोर्थ. माई पोजीशन इज फोर्थ वन. तो मुझसे जो नीचे जो परसेंटाइल होगी उससे वो 80 परसेंटाइल होगी. दैट मीन यू हैव एट द 80th परसेंटाइल. For example, if my height is 1.85 meter, then 1.85 meter is the 80th percentile height of that group. For example, अगर मेरी हाइट अगर इस 1.85 मीटर की जगह अगर मैं इसको फीट में बताऊँ 5'8" है, तो द 80th परसेंटाइल जो होगी वो 5'8" इंच होगी. उसके नीचे उससे लेसर जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल 5'7", 5'6", 5'4", 5'3", those all lies on before 80%. Another example, if a child weight is at the 50th percentile line, that means that out of 100 normal children, her age 50 will be bigger than she and 50 are smaller. क्यों? सेम एज ग्रुप की बात हो रही है. एक चाइल्ड की अगर 50th परसेंटाइल है तो मीन्स हाफ जो होंगे उससे उसी एज के उससे स्मॉलर होंगे और वेट में, और हाफ जो है उससे ग्रेटर होंगे वेट में. सिमिलरली, इफ़ शी is a 75th percentile, that means that she is bigger than 75 children and smaller than 25 children.
और कंपेयर विथ 100 चिल्ड्रन ऑफ हर एज। अगर 75 परसेंटाइल पर है तो मीन्स कि 75% जो है वो उससे चिल्ड्रन उसके एज से कम है, 25 उससे एज से ज़्यादा है, आउट ऑफ 100 का सैंपल हो। अगर ये सैंपल अगर फॉर एग्जांपल 200 का हो और 75 परसेंटाइल की बात हो रही हो तो मीन्स 150% स्टूडेंट चिल्ड्रन जो होंगे उससे एज में स्मॉलर होंगे और जो 50 स्टूडेंट जो होंगे चिल्ड्रन जो होंगे उसकी एज में उससे बड़े होंगे। Now another example, college and universities frequently report admission score test in terms of percentile। मुझे नहीं पता आप लोग ने कितनों ने गेट का टेस्ट दिया है या एनटीएस का टेस्ट दिया है या जी मेड वगैरह के टेस्ट दिए हैं, तो उसमें भी परसेंटाइल लिखा हुआ आ रहा होता है, अगर आप लोग ने देखा हो तो। फॉर इंस्टेंस सपोज एन एप्लीकेंट ऑब्जर्व अ रॉ स्कोर ऑफ 54 on a verbal portion of an admission test, how this student perform in relation to other student taking the same test may not be readily apparent। अब ये कैसे पता चलेगा इससे इससे बेहतर कितने स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है और इससे वर्स कितने स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है। हाउएवर इफ रॉ स्कोर इज 54 correspond to 70th percentile मीन्स कि 70 स्टूडेंट ने इससे कम स्कोर किए और 30 स्टूडेंट्स ने इससे 30% स्टूडेंट ने इससे ज़्यादा स्कोर किए। तो वी नो दैट अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ स्टूडेंट स्कोर लोअर देन दिस इंडिविजुअल एंड अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ स्टूडेंट स्कोर हायर देन दिस इंडिविजुअल। Now the formula for percentile is LP equals to P divided by 100 multiplied by n plus 1। Now P over here is percentile, n is for number of sample size, उसमें we add 1 तो हमारे पास वो परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी। To calculate the pth percentile for the data set containing n observation, we must first arrange the data ascending order, smallest value to the largest value। तो असेंडिंग ऑर्डर हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि उस परसेंटाइल से कितने लेसर है और कितने हायर है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूट 85 परसेंटाइल फॉर द होम सेल। अब 85 परसेंटाइल का जो हमारे पास 4,56,250, तो 4,56,250 एंड द वैल्यू इन पोजीशन 11 क्या है अगेन 2,98,000। तो नाउ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2,98,000, ये तो मेरा 11th हो गया, प्लस 0.05 4,56,250 माइनस 2,98,000, तो ये मेरे पास आ गया 1,58,250। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.05 से तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है सम अप होके 3,05,912.50। देयरफॉर $3,05,912.50 represent the 85 percentile of the home sales।